So, student, today we are going to take up a fresh topic of export management, that is excise clearance for export. Excise clearance, that means the clearance for the export has to be taken from the excise department. Now, question arises, why this clearance has to be taken, and which and what is the excise department? So, let me tell you that all the goods which are manufactured in India, which will be sold within India or which will be exported to any foreign country, government want their share in the manufactured sold item in the form of taxes. That means whatever the goods that we are manufacturing for selling, from the technical know-how, from the soil of India, from the mineral resources of India, government want share. Government want some amount of fees, and that fees is a kind of a tax. So excise clearance is not basically a fees that has to be paid. It is basically a tax which the government charges on the manufactured item before the movement of manufactured item from the factory premises. मतलब कि फैक्ट्री प्रीमाइसिस से निकलने से पहले एक्साइज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट अपना क्लियरेंस देगी, वो इंस्पेक्शन करेगी, वो ये देखेगी आपने प्रॉपर नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आइटम्स जो भी इनवॉइस में है, एक्सपोर्ट ऑर्डर में है, वो है कि नहीं, उनका क्लियरेंस देगी। फिर देखेगी आपने टैक्सेस पे किए ही नहीं पे किए हैं, ओवर वैल्यू किया है या अंडर वैल्यू किया है। एवरीथिंग विल बी screen out by the excise department, and then the clearance certificate will be given from the excise department. That means the goods are eligible for export. The manufacturers who are manufacturing the goods, and these goods are to be sold within India, for that purpose state clearance has to be taken. That means state government clearance has to be taken, or state excise department has to be considered in confidence. But the goods which are being exported for foreign country, which has to leave India, for that purpose central excise department has to be concerned. That means the role of central excise department will be there for giving the clearance of the goods for the export from India to any of the foreign country itself. And what they are doing, they will check that whether the goods ordered are packed or not, whether the description given is as per order or not, whether the packing has been done, the duty to the government has been paid or not. Means it is also basically a quality check, an inspection check before the leaving of the premises. मतलब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि एक्साइज क्लियरेंस जो है वो एक्सपोर्टर के प्रेमाइसिस पर ही दिया जाएगा। दैट मीन्स जब हमारा गुड मैन्युफैक्चर हो रहा है फॉर द एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, और एल्स वी कैन से कि जब हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला उसी समय हमको एक्साइज डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट को हमने इन्फॉर्म किया और उनको बताया कि इस तारीख को हमारा इस कंट्री में ये नंबर ऑफ गुड्स, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स और इतनी क्वांटिटी में, इतने प्राइस के, इतनी वैल्यू के एक्सपोर्ट होंगे। When this information is given to the excise department will properly make the arrangement कि उनको कब आकर इंस्पेक्शन करना है एंड चेक करना है और फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है। क्योंकि जब तक एक्साइज डिपार्टमेंट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक गुड्स एक्सपोर्टर प्रीमाइसेस या मैन्युफैक्चरर के यहां से नहीं जा पाएंगे। तो एक्साइज क्लियरेंस इज बेसिकली द टैक्स or a duty which has to be paid before the goods are moving
in the market, whether we can say Indian market or international market. One thing more, basically whatever the duty that we are paying for the export, और हम ये जानते हैं कि एक्सपोर्ट का तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है बिकॉज वी आर गेटिंग द रेवेन्यू फ्रॉम दैट। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जितना भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उस पर जितनी भी एक्साइज ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट कहती है वो एक्साइज ड्यूटी आप मत पे करिए। सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बनी, जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बनी, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट या तो चार्ज करती है पहले और बाद में रिफंड कर देती है, और यह गवर्नमेंट इनिशियल में ही चार्ज नहीं करती है। इसके दो तरीके होते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट अंडर रिबेट और एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड। एक्सपोर्ट अंडर रिबेट में मतलब ये हो गया कि एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे द एक्साइज ड्यूटी, कि वो पहले एक्साइज ड्यूटी देता है और जब उसका गुड्स शिपमेंट हो जाएगा तब सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट उसको ड्यूटी को रिफंड कर देगा। और दूसरा export under bond. Export under bond, that means the exporter has to give the undertaking, एक बॉन्ड लेटर तैयार करेगा इन फेवर ऑफ द एक्साइज अथॉरिटी, और उसमें लिखेगा कि इतना सम ऑफ ड्यूटी जो है हम पे कर रहे हैं, और जिसको मतलब इतना सम ऑफ ये ड्यूटी जो है, मतलब बेसिकली एक तरह से वो अंडरटेकिंग लेगा दैट दीज सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुड विल बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टर इटसेल्फ। There are few conditions also which you can see. They have been highlighted here itself. That what we are conditions for excise clearance under payment of excise duty. This scheme is functionable under Section 37 of the Central Excise and Salt Act 1944. The procedure for rebate claim for export is governed by only one rule, that is 12. The goods on which excise duty is charged shall be liable to be exported after the payment of the requisite duty. मतलब कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है, क्योंकि वो गुड्स ऐसे होंगे जो नेगेटिव आइटम्स के होंगे, जिनको गवर्नमेंट कह रही है कि आप मत एक्सपोर्ट करिए, लेकिन आप फिर भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट ड्यूटी चार्ज करती है। The excisable goods shall be liable to be exported in time period of not more than 6 months from the date of they were cleared for export from the factory premises। ठीक है, एक टाइम बोल दिया गया कि जब आपने इन्फॉर्म किया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसको एक्सपोर्ट करना है। रिबेट क्लेम बाय फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन shall be sanctioned from such place of export and such date as may be stipulated by the board in this interest। ठीक है, जो रिबेट क्लेम होगा, जो आपने फाइल किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन के थ्रू, वो आपको एक स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलेगा। Market price of the accessible goods at the time of exportation should be higher than the sum total of the rebate of the duty claimed। Very clear point। An amount of rebate of duty admissible is not less than 500 रुपीज। मतलब ड्यूटी जो आप क्लेम कर रहे हैं रिबेट का, वो 500 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए किस तरह से हम लोग एक तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए फॉरवर्ड होते हैं। पहले आपको एप्लीकेशन देनी होगी, जैसे हमने कहा था ना कि जैसे ही आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला और आपने शिपिंग कंपनी को इन्फॉर्म किया, कस्टम को इन्फॉर्म किया, पोर्ट को इन्फॉर्म किया, उसी समय आपको सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट जो कि सुपरिटेंडेंट वहां का होगा, उसको भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इस तारीख को, और वो 6 कॉपी में जाएगा। ये बहुत जगह जाता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक होने लगा है। व्हाइट, बफ, पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये डिफरेंशिएशन ऑफ ये कलर इसलिए किया गया है जिससे कि आसानी से ये मालूम पड़ पाए कि कौन से रंग का कागज किस डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। तो पहले आपने एप्लीकेशन 6 फॉर्म में भेज दी, फिर इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल एक्साइज, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज में असाइन, एक इंस्पेक्टर को असाइन करेगा, और वो इंस्पेक्टर आएगा और वो आपके यहाँ इंस्पेक्शन करेगा। हो सकता है कि वो पैक्ड गुड्स को ना खुलाए, लेकिन उसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो अगर उसको शक होता है तो वो पैक्ड गुड्स को भी खुलवा के देख सकता है। फिर गुड्स हमारा शिपमेंट पे चला गया, तो द सुपरिटेंडेंट ऑफ द एक्साइज एग्जामिन द गुड्स एक्नॉलेजिंग इन द ARE
ARE एक फॉर्म होता है जो एक्सपोर्टर के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें आपका एडवांस लाइसेंस, वैल्यू बेस्ड लाइसेंस, ये सारे ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम, ये सील ये सील कर दिए गए। सील ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स, जब इंस्पेक्शन हो गया तो गुड्स सारे सील कर दिए गए along with the documents. Sampling, after close examination of the export consignment, the Central Excise would collect sample wherever needed in triplicate. He would present two set of the sample properly sealed to the exporter or his authorities agent for handing over to the custom officer at the point of export. मतलब कि जब इंस्पेक्शन हो गया तो सैंपल निकालकर सील करके एक्सपोर्टर के हाथ में दे दिया गया, जिससे कि कस्टम अथॉरिटी जब ये पोर्ट पे जाएगा तो कस्टम भी इंस्पेक्शन करेगी। अब कस्टम वहां सारा माल ना खुलवा दे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट देखकर, सैंपल को देखकर वो आगे इस सेट को फॉरवर्ड कर सकता है। मार्किंग बॉक्सेस के ऊपर, जैसे कि पहले भी हमने कहा है आपको कि बॉक्सिंग के ऊपर, बॉक्सेस के ऊपर जो भी पैक्ड होते हैं उनके ऊपर हम मार्क कर देते हैं और उस पर लिख दिया हमने एक्सपोर्ट कार्गो। एक्सपोर्ट कार्गो लिख दिया, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपना क्लियरेंस दे दिया है। पर्सनल लेजर, पर्सनल लेजर अकाउंट, मैन्युफैक्चर वाइज पर्सनल लेजर अकाउंट इज मेंटेन। जो भी मैन्युफैक्चर है, एक्साइज डिपार्टमेंट जो है अपने यहाँ एक पर्सनल लेजर हर एक एक्सपोर्टर का मेंटेन करता है और उसमें वो रिकॉर्ड करता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, कौन से गुड्स किस तारीख में कितनी वैल्यू को और किस कंट्री को वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। द ऑल द प्रॉपर रिकॉर्ड इज बीइंग मेंटेन बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट। क्योंकि ये जो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट जो पर्सनल अकाउंट मेंटेन होगा, ये बाद में जब एक्सपोर्टर रिबेट के लिए क्लेम करता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्लेम ऑफ द एक्सपोर्ट। तो जब वो रिबेट के लिए क्लेम करेगा तो इस पर्सनल लेजर अकाउंट से हम लोग मैच कर सकते हैं, जस्ट टू मेमोराइज द थिंग्स एज एज ऑर्डर इटसेल्फ। देन प्रोसेसिंग ऑफ द ARE फॉर्म फॉर बाय एक्साइज अथॉरिटीज, मतलब अब एक्साइज डिपार्टमेंट सारा वेरीफाई कर लेगा, डिटेल्स रिटन इन द डॉक्यूमेंट। रेंज सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज अलाउज क्लियरेंस ऑफ कार्गो फ्रॉम द फैक्ट्री। और जब एक्साइज डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गया तो उसने कह दिया कि ठीक है, इस कार्गो को आप फैक्ट्री प्रीमाइसेस से बाहर ले आइए और उस पर लिख दिया जाएगा। लास्ट लाइन देखिए क्या लिखिए, अलाउड टू एक्सपोर्ट अंडर क्लेम फॉर सेंट्रल एक्साइज रिबेट। उस पर लिख दिया गया जिससे कि बार बार रिपीटेशन नहीं होते हैं, सब चीजें याददाश्त के लिए होती हैं और ऊपर से एक तरह से ये क्लियरेंस चेक भी है। एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट, ये बाद में भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये भी आप देखिए कि जब कस्टम के पास पहुंच जाता है तो कस्टम अथॉरिटीज भी गुड्स का एग्जामिनेशन करती हैं। हो सकता है वो करे, हो सकता है वो ना करे, हो सकता है कि जो जो सैंपल और सर्टिफिकेट बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको ही एक्सेप्ट कर ले, उसी की बेसिस पर थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता है। देन वी आर सपोज टू सबमिट द रिबेट क्लेम। जब हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो हम रिबेट के लिए ये क्लेम करेंगे। उसमें जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब हम लगाएंगे। देखिए डॉक्यूमेंट ए, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म सी, जो ट्रिपलेट में जाएगी। ओरिजिनल कॉपी ऑफ ARE1, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ARE1 रिसीव फ्रॉम द कस्टम ऑफिसर से रिसीव होती है। ड्यूली अटेस्टेड कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, ये बिल ऑफ लेडिंग जो शिपिंग कंपनी इशू करता है और ये कहता है कि हमारे शिप पर इस कंपनी के इतने गुड्स, इतनी क्वांटिटी के लोड हो गए हैं, वो बिल ऑफ लेडिंग हो गया। कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल, ड्यूटी अटेस्टेड बाय कस्टम अथॉरिटी, ड्यूली अटेस्टेड बाय कस्टम अथॉरिटीज एंड डिस्क्लेमर सर्टिफिकेट इन सिचुएशन वेयर क्लेम ऑफ रिबेट इज अदर देन द एक्सपोर्टर। अगर एक्सपोर्टर नहीं है, कोई और है, उसके लिए भी एक डिक्लेमेशन सर्टिफिकेट हो जाता है। वेरिफिकेशन होगा उन डॉक्यूमेंट्स का और फिर सैंक्शन ऑफ द रिपोर्ट, ये रिबेट हो जाएगा। कोई डिस्क्रिपेंसी होगी, then discrepancy has to be settled down. If the rebate sanctioning authority find any kind of discrepancy in the document for claim, the same should be pointed within 15 days filing the claim and should ask the exporter to rectify. और फिर रिफंड हो जाएगा जो भी पैसा था, जो क्लेम किया था एक्सपोर्टर ने, रिबेट का अमाउंट, वो ड्यूटी जो है, जो टैक्सेस जो है वो रिफंड हो जाएगी। In case excise goods are not exported,
अगर मान लीजिए एक्साइज गुड जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, तो फिर एक तरह से ये रिबेट वाला डॉक्यूमेंट जो है ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, एक मिनट इसको हमने, हाँ, दीज आर द list of documents which are required to be attested for export excise clearance: bill of entry, commercial bill, export import license, insurance certificate, export order, purchase order, LC, packing list, certificate of origin, shipper declaration, industrial license if applicable, registration cum membership certificate, quality control or inspection certificate, and payment receipt for port charges, duties as applicable. These are the various documents which are supposed to be attached by the exporter for exporting the goods, which will be required by the excise department also, by custom department also, and by the importer also. In the next video, you will try to see that the description of all these documents will be given in brief so that you can retain in mind. Okay, thank you all of you.